Let's do it. Follow up fourth. Open your book. This is follow up fourth. So we have Vritti commenced business with cash 90,000 and stock rupees 40,000. So again in the question we have capital in cash, we have capital in kind. So let's begin with cash and stock और दोनों का टोटल करके 1,30,000 हमारी कैपिटल बन जाएगी. Let's begin. Business commenced. Serial number देखिए. Yes. Yes, students. This is business commenced with cash and stock. Yeah, brought in the business. In the business, cash and stock. कुछ भी लिख लो. Business started with cash and stock लिख लीजिए. Brought in the business, cash and stock दोनों ही ठीक है. So she is bringing cash 90,000, stock 40,000. So I am writing here cash 90,000, stock 40,000, right? Then next step is we always draw the line. In my first transaction, there is no liability, so I will be writing nil in my liability column, right? This is nil. What about capital? दोनों को total कर दीजिए. Capital बन जाएगी आपकी 1,30,000 and write down the total over here. 1,30,000. This is nil, and this is again 1,30,000. Draw the line. Done. Come to the second. Purchase goods for cash rupees 30,000. 30,000 का सामान खरीदा भाई. क्या आया क्या गया? कैश गया और स्टॉक आया. 30,000 स्टॉक में ऐड कर दीजिए. 30,000 कैश में से माइनस कर दीजिए. लेट मी चेक वंस अगेन. इट्स 20,000. नो, इट्स 30,000. तो 30,000 का सामान खरीदा तो सामान आया मीन्स गुड्स आई और कैश गया. 30,000 से क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड ऑन कैश. गुड्स परचेज्ड on cash. So reduce your cash with 30,000. Now cash left with you is 60,000, right? Then stock बढ़ा हमारा already 40,000 का चल रहा है. So what I will do, 30,000 से I will increase my stock. Now the stock will be 70,000. Again the liabilities are nil. And here is my capital remaining same. That is 1,30,000 again. 1,30,000 again. So what you see, 60 plus 70 again, it is what? 1,30,000. Come to the next. Draw the double line, which always signifies that we just ended up our first item. See the board? Right? So here it ends up. Come to the next. Third transaction. अब की बार फिर से हमने सामान खरीदा लेकिन क्रेडिट पे खरीदा. सो व्हेनेवर वी बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट आवर लायबिलिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. तो 20,000 से आपकी लायबिलिटी बन जाएगी. 20,000 से आपका स्टॉक बढ़ेगा लेकिन कैश कम नहीं होगा बिकॉज यू आर बाइंग इट ऑन क्रेडिट. यू प्रॉमिस टू पे इट ऑन द लेटर डे. आपने इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करी, आप बाद में पेमेंट करने के बारे में बात कर रहे हो. सो जिससे भी आप उधार पे सामान खरीदते हैं वो आपके क्या बन जाते हैं? क्रेडिटर. सो व्हाट आई विल राइट हियर, goods purchased on credit. Goods purchased on credit. Only stock I will increase, cash will remain same, right? So cash is 60,000 once again. Stock will become 90,000. Stock is 90,000 and creditors. That are now 20,000 for the first time that creditors are coming into existence. Then draw the line. Capital is remaining same. लिखिए टोटल. सो यहाँ तक आपका टोटल बना एसेट्स का 1,50,000. 150 में से क्रेडिटर्स 20,000 माइनस किए. Once again your left hand side is equal to your right hand side. Draw the double line which signifies the end of your third transaction.
Now, in order to do the fourth transaction, I need third transaction. So that's the transaction I am not rubbing. First and second transaction I am going to rub. Read fourth on your own and try to think what is coming, what is going, what is increasing, what is decreasing. जरूरी नहीं है एक इंक्रीज हो तो दूसरा डिक्रीज हो, दो चीजें इंक्रीज भी हो सकती हैं, दो डिक्रीज भी हो सकती हैं इकट्ठी. ओवरऑल डुअल एस्पेक्ट है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है. Every time we follow, for every debit there is reverse credit. So let me redraw these lines. Right? Next, very very important point once again. 18,000 का सामान था, 15,000 में बेचा. We are losing. ठीक है, goods. This is fourth. Sold goods of rupees 18,000 for rupees 15,000. Sold goods costing rupees 18,000 for rupees 15,000. 18,000 का सामान है और आप 15,000 में बेच रहे हो. वी आर लूजिंग बाय 3,000. जो हमारा लॉस है वो कैपिटल में से माइनस होगा. 18,000 से स्टॉक क्या होगा, कम. और हमें ये 18,000 का सामान बेच के हमें मिला कितना है, 15,000. तो 15,000 से कैश क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे. सो लेट्स सी, वी विल इंक्रीज कैश. तीन जगह इफेक्ट पड़ता है हमेशा सेल का. व्हेन इट इज एट प्रॉफिट और लॉस, capital gets affected, cash gets affected and your stock also gets affected. So cash 15,000 माइंड में ऐड करिए, 60 में 15 ऐड किया 75. स्टॉक 18 से कम कर दीजिए 72. ऐड करिए 147. क्रेडिटर्स रिमेनिंग सेम. In my third transaction they were of rupees 20,000. What about capital? Capital आपकी कितनी चल रही है भाई, 1,30,000. 130 में से 3,000 का लॉस है, that I will deduct from my capital. Right? 1,30,000 में से 3,000 माइनस करिए. कैपिटल 1,30,000 minus loss on sale of goods, that is 3,000. So it will come to me 127. You can see 147, 1,47,000 में से 20,000 माइनस करेंगे. Again your accounting equation gets satisfied. Your left hand side of the equation is exactly equal to the right hand side of your equation, right? Draw the double line. So here we ends up with fourth transaction. Let me do fifth transaction. पढ़िए फिफ्थ और सोचिए क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है. Try to read the statement on your own, then only you will start getting the things, right? किस तरह से सोचना है. So this is our fifth number, students. Interest paid for the next year by, no, I'm reading the next. Goods costing rupees 10,000 sold for rupees 13,000 but on credit. When we sell the goods on credit, हमारे डेटर हो जाते हैं. 10,000 का सामान 13,000 में बेचा, 13,000 से डेटर बनेंगे, 10,000 से स्टॉक कम कर देंगे और 3,000 हमें प्रॉफिट हुआ आपकी बार, वो कैपिटल में ऐड होगा. तो क्या लिखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 sold for rupees 13,000 but not on cash. This time we are selling it on credit. तो दो तरह की सेल्स आपको क्वेश्चन में बताई. वन सेल इज ऑन कैश बेसिस, another sale is on credit basis. One sale is at loss, another sale is at profit, right? Goods costing rupees 10,000 sold for rupees 13,000 on credit. So 13,000 के डेटर्स बनाइए. कैश में कुछ नहीं आएगा because you are selling on credit. Cash will remain same 75,000. 10,000 का सामान बिका, स्टॉक अभी 62 का रह गया. स्टॉक विल बी 62 और डेटर्स विल बी, उधार पे बेचा है 13,000. सो 62 प्लस 13 75, 75 प्लस 75 1,50,000. जल्दी से कैलकुलेशन, फास्ट एंड एक्यूरेट. अगेन माय क्रेडिटर्स आर सेम. राइट?
Then we are coming to the next. कैपिटल कितनी चल रही है? 1,27,000. 1,27,000 में 3,000 प्रॉफिट ऐड कर दीजिए. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स. Profit we always add, loss we always deduct from the capital. Right? So earlier our capital was 1,27,000, add profit 3,000. So again your accounting equation gets smashed. You can see 150 minus 1,20,000. Again your left hand side is equal to your right hand side of your accounting equation. So here we ends up with 5th. Now come to the 6th. पढ़िए खुद 6th. Yes, again a new point for you. Goods distributed as free sample. जब कंपनी कुछ नया लॉन्च करती है तो उसके छोटे छोटे सैशे फ्री में लोगों में एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में बांटती है. तो फ्री सैंपल की फॉर्म में जब आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो आपका एडवर्टाइजमेंट बनता है, मींस वो आपका एक्सपेंस बनता है. और क्योंकि आपने अपना सामान एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में लोगों में फ्री में बांटा है, सो यू विल रिड्यूस योर स्टॉक. एक स्टॉक कम होगा और एक बीइंग एन एक्सपेंसेस कैपिटल कम होगी. हिमांशु, आई विल टेक योर क्वेरी लेटर. लेट मी फर्स्ट फिनिश दिस फॉलो अप. सो एक स्टॉक कम करेंगे क्योंकि गुड्स बांटी है ना, गुड्स मतलब अपना सामान. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. एज फ्री सैंपल तो एक तरह से आपका लॉस है, आपका एक्सपेंस है. कितने का सामान फ्री सैंपल की फॉर्म में बांटा है? 16,000. स्टॉक को 16,000 से कम करो. कैश कुछ आया नहीं क्योंकि मुफ्त में बांटा है. कैश इज 75,000. स्टॉक 16,000 जब कम किया तो 46,000. डेटर्स 13,000. ओवरऑल टोटल में से 16,000 माइनस कर दो स्टूडेंट्स. सी द बोर्ड. बार बार मैंने बोला है टोटल नहीं करेंगे, पुराने टोटल में ही चेंजेस करेंगे. इसमें से 16,000 माइनस किया तो आई हैव 134. क्रेडिटर्स अगेन रिमेनिंग सेम, दैट आर 20,000. राइट, लिखिए क्रेडिटर्स सेम. और क्योंकि आपने 16,000 का सामान बांटा है, दैट इज लीडिंग टू द लॉस. सो हियर आई डू राइट माय कैपिटल, दैट इज 1,30,000 चल रही है कैपिटल. minus goods distributed as free sample or minus free sample, you can write 16,000. So it will come to me 114. Check it. 134 में से जब 20,000 माइनस करेंगे, you will be having the same total as of your capital, that is 1,34,000. Once again your accounting equation gets matched. So this was your 6th point. Come to the last point, that is 7th point. So in order to do 7, I do require this. तो मैं ये लास्ट वाला नहीं रिमूव करूंगी, पहले 2 रिमूव कर देती हूँ. 7th ट्रांजैक्शन को करने के लिए 6th ट्रांजैक्शन और 6th accounting equation will act as a base. Let's see. ड्राइंग्स की बात कर रहा है, पर्सनल विड्रॉल की बात कर रहा है. सामान ले गया बिजनेस में से, मींस फिर से 7,000 का स्टॉक कम हो जाएगा. और क्योंकि ये ड्राइंग है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. 7,000 एक में कैपिटल में से माइनस करूंगी, एक में स्टॉक में से माइनस करूंगी. सो हियर आई राइट द नंबर 7. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. withdrawn, see the board, withdrawn for personal use. राइट. सो 7,000, 46,000 में से 7,000 माइनस कर दीजिए. कैश सेम लिखिए 75. स्टॉक में से 7,000 माइनस किया तो 39,000. डेटर्स विल रिमेन सेम 13,000. गेट द टोटल ऑफ दीज आइटम्स. ओवरऑल 7,000 से कम होगा टोटल. पहला टोटल कितना चल रहा है? सी द बोर्ड फ्रॉम द बॉटम. पहला टोटल कितना चल रहा है स्टूडेंट्स? 134. 134 में से 7 ही माइनस करना है, 127 ही टोटल आएगा भाई. क्रेडिटर्स आर सेम 20,000. So what about this?
1,14,000 कैपिटल रही थी हमारी 6th ट्रांजेक्शन में, 7,000 ड्रॉइंग्स माइनस कर दीजिए. कैपिटल विद यू वाज 1,14,000 minus drawings 7,000, so that comes to me 1,07,000. Again you find 127 minus 20 is equal, this is 20 by, is equal to 1,07,000. So this is the way. Any doubt to anyone? Now you can ask. See the board. 1,27,000 minus 20,000 is equal to 1,07,000. So it's your turn now. You may ask your queries. Let me come to your screens. So Himanshu has raised hand. Himanshu, I am going to unmute you. You can ask your query. Speak up. Excuse me, ma'am. बोलो. मैम 4th and 5th का रिपीट कर दो. 4th एंट्री रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं. 4th एंट्री देखिए. 4th एंट्री क्या थी? 4th and 5th कर देना मैम. 4th एंट्री. 4th and 5th एंट्री. ओके, 4th and 5th एंट्री करते हैं भाई. दोनों ही सेल्स की हैं. लेट्स सी. एक बार आपने सामान उधार पे बेचा, एक बार आपने कैश में बेचा. देखिए जरा, एक बार 18,000 का सामान 15,000 में बिका. सो आई एम राइटिंग हियर CP, आई एम राइटिंग हियर SP. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CP? CP वाज 18,000 और 18 का सामान, SP का मतलब सेलिंग प्राइस, आपने 15 में बेचा. सो वी आर हैविंग लॉस. पे अटेंशन एवरीवन. लॉस आई विल डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल. 15,000 का जो सामान बिका है, 15,000 से कैश को बढ़ा देना क्योंकि कैश में बिका है. 18,000 से स्टॉक कम करना. So this will be deducted from stock. This is to be added to the cash and this is to be deducted from the capital. So with the sign of plus and minus I told you, CP स्टॉक को 18,000 से कम कर देना, जितने में बिका है 15,000 से कैश बढ़ा देना और 3,000 आपका लॉस है, उतने से आप अपनी कैपिटल क्या कर देना, कम. अब 5th पॉइंट देखिए, वहां पे उलट है. अब की बार CP 10,000 है और SP क्या है, 13,000. सो वी हैव द प्रॉफिट. 3,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये जो गुड्स बेची हैं नॉट ऑन कैश, रादर ऑन क्रेडिट. तो एक नया एसेट बनेगा. द कस्टमर्स टू हुम वी सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, दे बिकम माय डेटर्स. सो यू विल राइट इन द एसेट कॉलम अ न्यू एसेट दैट आर डेटर्स. 13,000 से डेटर्स लिख देना. स्टॉक कम करना 10,000 से. 13,000 के डेटर्स लिख दिए. 3,000 जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड करेंगे. सो रिड्यूस द स्टॉक विद 10,000. डेटर्स इतने से लिखिए और ये कैपिटल में ऐड करिए. जो 3,000 है प्रॉफिट, वो कैपिटल में क्या होगा, ऐड. दिस इज प्रॉफिट भाई. लेट मी डार्क इट. दिस इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज टू बी एडेड टू द कैपिटल. Selling price will not be added to the cash because we are not selling it on cash basis, rather we are selling it on credit basis. Himanshu, is it clear now? मैम एक बार लिख के दिखा दो एसेट का. एसेट में, एसेट के कॉलम में. थर्ड कॉलम मैंने लिखवा दिया होगा, अब उसमें ऐड और लेस होना है. मैम 5th to 5th. This is Kudarat commenced business. Business commenced with cash लिखिए. फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखिए बिजनेस कमेंस्ड विद कैश. ऊपर कॉलम्स के नाम आप खुद लिखेंगे. बिजनेस कमेंस्ड. So Kudrat is the name of the proprietor. Who is the owner of the business? 2 lakh cash. क्या आया, कैश. और किस फॉर्म में आया, कैपिटल की फॉर्म में. लायबिलिटीज अभी तक नील है. सी द लायबिलिटीज आर नील. So same you will be writing capital 2 lakh. Draw the line because we have only single item. No, nothing is to be added here and so यही दोनों साइड का टोटल रहेगा. 2 lakh is equal to 2 lakh. Come to the second. Cash borrowed from bank. लोन आया मीन्स कैश आया और लोन मेरी लाइबिलिटी बना. Borrowed from bank. लाइबिलिटी आएगी और कैश बढ़ेगा मीन्स एसेट भी बढ़ा और लाइबिलिटी भी बढ़ी. बैंक लोन टेकन. बैंक लोन टेकन या बोरोड फ्रॉम बैंक, जो वर्डिंग वो लिखता है वो भी लिख सकते हैं. टेकन की जगह बैंक लोन रेज्ड लिखो. टेकन एक नॉन कॉमर्स बंदे की लैंग्वेज लगती है, बट वंस आई यूज अ वर्ड रेज्ड इट मींस कि मैंने लोन लिया. राइट. सो 50,000 का लोन लिया मैंने. कैश को बढ़ा दीजिए. कैश विल नाउ बी 2,50,000. बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी बनेगा 50,000. So capital will again remain same
that is 2 lakh. Again मैं सीधी लाइन ही लगाऊंगी because in each column I have only one item. So फिर से दोनों साइड मैच कर रही हैं. 2,50,000 में से 50,000 अगर माइनस करें, this should not be merged with the line. It should be written neat and clean. This is 50,000, right? 2,50,000 minus 50,000. Once again it is equal to 2 lakh. आगे चलिए. मशीनरी खरीदी 60,000 की. क्या आया क्या गया? मशीन आई और कैश गया. 60,000 से कैश कम कर दीजिए और 60,000 का एक नया एसेट मशीनरी लिख दीजिए. मशीनरी परचेज. थर्ड पॉइंट, मशीनरी परचेज. बुक में वैल्यू दे रखी है, कितने में खरीदी है? 60,000 में. सो 250 में से 60 माइनस किया, 190. रिमेनिंग कैश विद यू इज 1,90,000. हाँ जी, मशीनरी इज अ न्यू एसेट. राइट इट हियर. That is of 60,000. So your total of the asset is 2,50,000. बैंक लोन टोटल सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एक एसेट बढ़ा दूसरा कम हुआ. कैश कम्स डाउन एंड योर मशीनरी इज अ न्यू एसेट क्रिएटेड. So bank loan will remain same, 50,000. Once again the capital will be 2 lakh. Draw the double line. Again your accounting equation, both the sides are matching. 2,50,000 minus 50,000. Come to next. Yes, फर्नीचर परचेज. 40,000 से कैश कम कर दीजिए और 40,000 एक नया एसेट लिख दीजिए. एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है. क्या लिखेंगे? फर्नीचर परचेज. 40,000 से कैश कम करिए. So this is cash. Will be after the deduction of 40,000. Will now it be 150. Machinery will be 60,000. And a new asset furniture, I am writing it the third number, that is 40,000. So again the total will remain same, क्योंकि एक asset कम हुआ है तो दूसरा बड़ा है. Right? See the board. So 2,50,000 once again the total. Bank loan is remaining same, 50,000, and capital once again is 2 lakh. So what you see, 2,50,000 minus 50,000 is equal to 2 lakh. Once again your accounting equation gets satisfied. अगला मैं orally discuss करूंगी. 30,000 का फर्नीचर था, 35,000 में बेच दिया. 5,000 क्या हुआ? प्रॉफिट. जो 5,000 प्रॉफिट है that is dead sure is to be added to the capital. 5,000 कैपिटल में ऐड कर देना. फर्नीचर 20,000 से कम कर देना. और कितने में बिका है? सॉरी, 30,000 से कम करना. पुराना फर्नीचर हो गया होगा, अब फर्नीचर 10 का रह जाएगा और 35,000 से कैश बढ़ा देना. आई एम रिपीटिंग. जितने में फर्नीचर बिका है उतना कैश आ गया. गया क्या? फर्नीचर. फर्नीचर में से कम कर दीजिए, कैश में ऐड कर दीजिए और जो प्रॉफिट हुआ है कैपिटल में ऐड कर दो. बोथ द साइड्स विल मैच. अगला भी ऐसा ही है. 18,000 की मशीनरी. मशीनरी में से 18,000 माइनस करना. कितने में बिकी है? 15,000 में. कैश में 15,000 ऐड करना. बैठे बैठाए 3,000 का घाटा है, मींस लॉस है, वो कैपिटल में से क्या कर देना? माइनस. फिर वो कहता है बैंक से मैंने 50,000 का लोन लिया था, 20,000 मैंने रीपे कर दिया. मींस बैंक का लोन आप रीपे कर रहे हो तो 20,000 से लोन कम कर देना, 20,000 से कैश कम कर देना. एक ऐसी ट्रांजैक्शन सामने आई जिसमें एसेट भी कम हो रहा है और लायबिलिटी भी कम हो रही है. सो वंस यू हैव टेकन द लोन, इट इज योर ड्यूटी टू रीपे इट. सो वी आर रीपेइंग इट. नाउ एनी डाउट टू एनीवन, you may ask, you may raise your hand, you can send your queries in my chat box, right?